الحمدللہ الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چھیڑو نہیں بس یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الہاشمی المدنی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وفاق کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی تھی تو اس دوران کوئی بات چیت کرتا تھا؟ یہ آقا ہی کی بات، اللہ رسول کی بات ہوگی، ہماری باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عمل کے جذبے اور عمل کی نیت سے سنے گا، یہ ایک مجلس ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور آپ تو سارے وکلاء ہیں، ججز بھی ہوں گے، جوڈیشری کا ایک بہت بڑا منصب اور وائٹل رول ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ سیویلائزڈ، ایجوکیٹڈ، سفسٹیکیٹڈ، ماڈریٹ وہ تو آپ کا طبقہ ہے۔ تو مجھے پوری امید ہے، میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ پوری توجہ سے بات سنیں گے۔ مینجمنٹ، انتظامی چیزیں ایک دوسرے سے ڈسکس ہو سکتی ہیں، لیکن آڈینس اگر توجہ دے تو جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیں، اس کانفرنس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حقوق العباد۔ میں انہی دونوں موضوعات اور سبجیکٹ پر اپنی بات کو فوکس کروں گا۔ سیرت کا لفظ ہم بار بار سنتے ہیں، کبھی غور کیا ہے سیرت کے معنی کیا ہے؟ سیرت کا لفظ سیر الابل سے نکلا ہے، سیرو فی الارض سے نکلا ہے۔ پہلے زمانے میں اونٹوں کے قافلے چلا کرتے تھے، جو پہلا اونٹ ہوتا اس کو راستے کا پتہ ہوتا تھا، تو وہ جب صحرا میں قدم رکھتا تھا تو ایک چھاپ، ایک سٹگما بن جاتا تھا، دوسرا اونٹ بھی اسی نشان پر قدم رکھتا تھا، تیسرا اونٹ بھی اسی نشان پر قدم رکھتا تھا۔ قدم رکھنے میں اتنی بیلنسنگ ہوتی تھی، اتنی ایکویلنسی ہوتی تھی، اتنی مطابقت ہوتی تھی، اتنی موافقت ہوتی تھی، اتنی حذو النال بالنال، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے سائز میں برابر ہوتا ہے، ایسی پرفیکشن ہوتی تھی۔ تو جب پچھلا اونٹ اگلے اونٹ کے نشانے قدم پر قدم رکھتا تھا، اس کو فالو کرتا تھا، وہ اپنی ڈیسٹینیشن اور منزل تک پہنچ جاتے تھے۔ امتی آمنہ کے لال کے نقشے قدم پر قدم رکھے گا، یہ اپنی منزل جنت تک پہنچ جائے گا۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ اب ایک ہوتی ہے صورت، ایک ہوتی ہے سیرت۔ آقا کی صورت میں ہم ایسی اتباع تو کر سکتے ہیں کہ امامہ باندھ لے، سفید یا کالا، داڑھی رکھ لے، سنت کے قریب لباس پہن لے، لیکن آقا کی جو صورت تھی
वो तो किसी को मिल ही नहीं सकती। कहां से लाए वो नूरानी चेहरा, कहां से लाए वो सुरमा नगी सियाह आंखें, कहां से लाए उस पर आबरू का हिलाल, कहां से लाए वासिउल जबीन वो कुशादा पेशानी, कहां से लाए सहनुल खद्दैन वो नरम गाल, कहां से लाए किस्सुल लिहया वो घनी दाढ़ी, कहां से लाए वो चांदी की तरह चमकती हुई गर्दन, कहां से लाए सवाउल बतनी व सदर पेट और सीने का बराबर होना, कहां से लाए बालों की वो बारीक लकीर जो सीने से नाफ तक गई थी, कहां से लाए वो मोतियों की तरह चमकदार दांत, कहां से लाए अकन लारनई वो उठी हुई खूबसूरत नाक, कहां से लाए वो सियाह घनी जुल्फे, कहां से लाए मसीहुल कदमैन वो चमकदार एड़ियां जैसे ताजा किसी ने पानी डाल दिया हो, कहां से लाए वो लंबे खूबसूरत हाथ, कहां से लाए वो कंधों का दरमियानी फासला, कहां से लाए अरीज सदरी वो चौड़ा सीना। शायर ने कहा चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरेन तकद्दुस की नदी है, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज है कि वल फजर की आयात के अमी है, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, आबरू है कि कौसैन शबे कदर खुले हैं, गर्दन है कि बरफर्क जमी और जो सुरैया लबसूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबूवत के खदो खाल का मयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिले हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज रुखे लोहो कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दां की ज़बां बोल रही है, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए बादल, क़िराअत है कि असरार जहां खोल रही है, ये दांत ये शीराज़े शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, शर्मिंदा ताबे लबे दंदान पैगंबर हरफे बसना खानी खामा बसरी रे, ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की धनक, ये अक्स मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम, ये शुक्र के सजदे हैं कि आयात की तंजील, ये आंख में आंसू है कि इल्हाम की रिमझिम, कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं, उंगली का इशारा था कि तकदीर की जरबत महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं, कहने को तो साकों पे गुजरी तेरी रातें, इस्लाम मगर अब भी नमक खार है तेरा, तूने ही सिखाई है तमीज़े मनो यज़दा, इंसान की गर्दन पे सदा बार है तेरा, कहने को तेरा फख्र तेरे फख्र का बाइस, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा, कहने को तेरे सर पे है दस्तार यतीमी, लेकिन तू जमाने के यतीमों का सहारा। अल्लाह आपके जज्बात का आपको अजर दे। एक लफ्ज का सीरत का हम समझ कर भी जाए, आप वकला हैं, आपके पास कंटेंट है, आपके पास मवाद है, आप दलाइल और नजरियात की बात करते हैं, सीरत का अकॉर्डिंग टू अरेबिक वर्ड टू वर्ड मीनिंग मैंने बता दी। अब मैं बताऊंगा इत्तिबा का लफ्ज। हम कहते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए नबी कह दीजिए अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। इत्तिबा का लफ्ज अरबी में तबीउन से निकला है। तबीउन अरबी में बछड़े को कहते हैं। बछड़ा जब पैदा होता है आप उसको मां से और गाय से ममता से दूर करते हैं, वो फिर लपकता है जैसे बछड़ा ममता की तरफ लपक रहा है, उम्मती प्यारे आका की सुन्नतों की तरफ लपके, इत्तिबा है। और दूसरा लफ्ज था हुकूकुल इबाद, जिसको हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। भाई कुछ लोग जैसे हजरत ने कहा हुकूकुल्लाह पूरा करते हैं, हुकूकुल इबाद की कोई फिक्र नहीं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, उम्रे पर जाते हैं, तबलीग में जाते हैं, सदका खैरात करते हैं, लेकिन
पड़ोसी उससे तंग है, बीवी का हक अदा नहीं होता, बच्चों की सही तरबियत नहीं होती, ये भी अधूरा है। और दूसरा, ह्यूमन राइट्स का तो चैंपियन है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता। अगर आप उससे पूछे कि आप नमाज नहीं पढ़ते, कहते जी ये मेरा पर्सनल मैटर है, ये मेरा और मेरे रब का मामला है। भाई उसी रब ने जिसने तुम्हें पैदा किया, जो क्रिएटर है, उसने कहा मेरी इबादत भी करो। तो जैसे साइकिल के दो पहिए होते हैं, दो व्हील होते हैं, दोनों बैलेंस होंगे तो साइकिल ट्रैक पर चलेगी। तो हुकूकुल्लाह को भी पूरा करना है और हुकूकुल इबाद को भी। मैं अप्रिशिएट करता हूं आपके इस बार एसोसिएशन को और जनाब इसहाक साहब और इनकी जो पूरी टीम है, गौहर साहब, मुख्तलिफ हजरात, कि आप लोगों ने सीरत पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। कल क़यामत के दिन हमारे ये 2 घंटे तराजू में तोले जाएंगे। आका की मोहब्बत में ये अपने कामों को छोड़कर आए थे, इसलिए कि सबको पता था कि सबसे ज्यादा जरूरी मेरे आका की सीरत। भाई मुझे और आपको अपने आप को जानना इतना जरूरी नहीं जितना आका की सीरत को जानना जरूरी है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों पर उनकी जान से भी ज्यादा हक रखते हैं। तो बहरहाल हुकूकुल इबाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका है। क्यों? कि भाई जितने भी अंबिया आए, अंबिया के आने का क्या मकसद था? एक तो आप सुनते हैं कि अल्लाह की तौहीद का डंका बजाना, दूसरा मकसद था अदल फराहम करना, इंसाफ फराहम करना, लियकूम अन्नासु बिल क़िस्त। कुरान में जो किस्त का लफ्ज आया है, हम कहते हैं ना किस्तों का कारोबार। अकॉर्डिंग टू अरेबिक ग्रामर किस्त का माना होता है इंसाफ फराहम करना। तो या लियकूम अन्नास कहा, सिर्फ मुसलमानों को इंसाफ फराहम करना नबियों का मकसद नहीं। लियकूम अन्नास, ह्यूमन बीइंग, सारी इंसानियत को इंसाफ फराहम करना, ये अंबिया का मकसद था। इसीलिए तो आमना के लाल, अब्दुल्लाह के नूर नजर, मक्का के दुर्रे यतीम, सरवरे कायनात, शाफ़िए महशर, वजह कायनात, अफजलुर रसूल, सय्यदुल अंबिया, सय्यदुल अत्किया, इमामुल मुजाहिदीन, इमामुल मुबल्लिगीन, वाला आली कमाली जमाली नवाली अताई सनाई बयानी शानी कुरानी मोहम्मद मुनव्वर मुतहर मुअज़्ज़ज़ आला अरफा अकमल और कामिल नबी ने क्या फरमाया कि जो किसी मुआहिद को कत्ल करेगा, मुआहिद जिससे मुसलमानों ने एग्रीमेंट किया, जिसको मुसलमानों ने शेल्टर फराहम किया, जिसको मुसलमानों ने असाइलम दिया, जिसको मुसलमानों ने पनाह दी, जिसको मुसलमानों ने जिम्मा दिया कि भाई तुम हमारे मुल्क में रहो, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, तुम्हारी जान माल इज्जत आबरू की हम हिफाजत करेंगे। किसी ने उस काफिर को कत्ल कर दिया, आका फरमाते हैं कि जिसने मुआहिद को कत्ल किया, जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। और फिर आपने फरमाया क़यामत के दिन उसका वकील मैं बनूंगा, उसकी तरफ से केस की पैरवी मैं करूंगा कि इसके साथ जुल्म क्यों हुआ। इसीलिए अजीजाने गरामी, अल्लाह पाक हदीस कुदसी में फरमाते, हदीस कुदसी उसको कहते हैं, चूंकि आप लोगों की फील्ड है कि जो अल्लाह की बात हो ज़बान रसूलुल्लाह की, उसको कहते हैं हदीस कुदसी। अल्लाह फरमाते हैं या इबादी, ए मेरे बंदो, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, मैंने अपने आप पर जुल्म को हराम कर दिया, फला तज़लिमू, तुम भी जुल्म नहीं करना। भाई अदलिया का माना इंसाफ होता है, इंसाफ का जो मुतजाद होता है वो क्या होता है? जुल्म। तो अगर हम इंसाफ नहीं करेंगे तो ऑलरेडी जुल्म हो जाएगा। इसीलिए इस्लाम में जो निजाम अदल है उसमें हुदूद है, उसमें किसास है, उसमें ताजीरात है, और इतनी उसमें इक्विवेलेंसी है कि किसी ने किसी का दांत तोड़ा तो इंतकाम में भी आप मुमासलत करेंगे। उसने एक दांत तोड़ा, आप दो नहीं तोड़ सकते। उसने आधे सर को जख्मी किया, आप पूरे सर को जख्मी नहीं कर सकते। आप कत्ल तो कर सकते किसास में, उसका मुसला और आज़ा को नहीं काट सकते। आप जंग में जाएंगे, उनकी औरतों पर जुल्म नहीं करेंगे, बच्चों को नहीं काटेंगे। जैसे इस्राएली दरिंदा फलस्तीन के अंदर 60,000 मुसलमानों के खून से उसके हाथ रंगे हुए हैं,
18,000 उसमें बच्चे हैं, इतने ही उसमें औरतें हैं। इस्लाम तो कहता है दुश्मन की औरत भी आए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर औरतों के सर पर अपनी चादर रखकर पैगाम दे दिया था, इस्लाम अमन का दर्ज देता। इसीलिए आज अंग्रेजों ने एक किताब लिखी, रिलीजन द मिसिंग डायमेंशन ऑफ स्टेट क्राफ्ट। अल्लामा इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद के खुतबात को जमा करके कंपाइल करके जो किताब पब्लिश होकर आई, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, आप उसको पढ़े, आपको पता चलेगा इस्लाम के बारे में। तो माइकल हार्ट ने दी 100 में पहला नंबर किसको दिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो खुद क्रिश्चियन था, पहला नंबर ईसा अलैहि सलाम को नहीं दिया, दूसरा नंबर भी ईसा अलैहि सलाम को नहीं दिया, तीसरा नंबर दिया पहला हमारे नबी को और दूसरा उसने आइजैक न्यूटन को दिया। और आइजैक न्यूटन का मशहूर जुमला क्या है? इफ आई हैव सीन फर्दर इट इज बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जाइंट्स, कि मैं जिस मकाम तक पहुंचा हूं ये पिछले लोगों के कंधों पर पहुंचकर मैंने उनसे फायदा किया है। तो हम भी अपनी अकल के सामने बंद बांधेंगे, जहां सहाबी की बात आ जाएगी, जहां अहले बैत की बात आएगी और जहां मेरे नबी की बात आएगी, वहां हमारी अकल खत्म हो जाएगी। आज स्टडी डिस्ट्रक्शन का दौर है, मुतालाती इंतशार का दौर है। कंटेंट के जरिए, तहरीर के जरिए, तकरीर के जरिए इस्लाम के खिलाफ एक नेगेटिव परसेप्शन डेवलप होता है। वॉर अगेंस्ट इस्लाम नहीं, वॉर विद इन इस्लाम का दौर चल रहा है। वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही, तो हमने दीन को वेस्टर्न सोर्सेस से हासिल नहीं करना, कुरान और हदीस से हासिल करना है। और अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वारिस उलमा को करार दिया, कुरान और हदीस पर जिनकी गिरफ्त होती है, जो तफसीर को, उसूल तफसीर को, हदीस को, उसूल हदीस को, फिक़ह को, उसूल फिक़ह को, इल्म बयान, इल्म कलाम को, इल्म मानी को, मंतिक को जो समझते हैं, इस्तिंबात और इस्तिखराज का, कियास का उनके पास इल्म होता है। जब उनसे हम कनेक्ट होंगे, आपको केसेस में जहां शरी पर्सपेक्टिव से कोई बात पूछनी हो, आप किसी मुस्तनद आलिम से रुजू करें। ऐसा ना हो कि अनकॉन्शियसली आप शरीयत के खिलाफ कोई फैसला करें या शरीयत के खिलाफ किसी फैसले में आप सपोर्ट करने वाले बन जाए, हमें पता भी नहीं चलेगा, आखिरत खराब हो जाएगी। बीइंग अ मुस्लिम हमारा सबसे बेहतरीन रोल यह होना चाहिए कि हमारे किसी फैसले में शरीयत से टकराव और क्लेश ना आए। कि जिस तरह आपकी उलमा से मोहब्बत है, ऐसे प्रोग्रामात का इनेकाद है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबसे खूब काम लेगा। एक कुरान की आयत है, ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ए लोगों एक दूसरे का माल गलत तरीके पर हड़प न करो, वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और फिर तुम उन फैसलों को हुक्मरानों के पास ले जाते हो और रिश्वत से और सोर से और चरब जबानी से आप उनका माल खा जाते हो। सबसे बड़ा गुनाह एक मुसलमान का माल नाहक तरीके पर खाना, उसकी इज्जत नफ्स को मजरू करना। तो आपके पास जब केसेस आते हैं, आप इंशाल्लाह देखते होंगे, लेकिन और गौर करें कि अगर ये हक पर है तो मैं इसका साथ दूंगा। अगर मुझे नजर आ रहा है ये जालिम है और ये नाहक अपनी चीज जो है वो मनवाना चाह रहा है, तो हम कभी भी उसके मुआविन न बने। एक मुसलमान अपनी आखिरत को देखता है। मुझसे किसी ने कहा कि दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, 60-70 हजार रुपए पर वर्कशॉप के लेते हैं। कल भी हम मूविंग पिक में थे, आप उलमा चार्जेस क्यों नहीं लेते? मैंने कहा मसला ये है कि ठीक है हम भी ले सकते हैं, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर वो आपको इस दुनिया के बारे में प्लानिंग दे रहा है कि भाई 50-60 साल तक आपने कैसे सरवाइव करना है, लेकिन आलिम दीन जो बता रहा है वो इस दुनिया में भी काम आएगा और मरने के बाद कब्र में और हशर में भी काम आएगा। तो लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम, अच्छा पर्सपेक्टिव वो हमें कुरान और हदीस से मिलेगा। हज्जतुल विदा के मौके पर हुकूकुल इबाद की हम बात करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और जिंदगी का आखिरी हज था और आप
मैदान आराफात में यौम आराफा को अपनी कस्बा नामी ऊंटनी पर सवार थे। 1,24,000 सहाबा आपके इर्द गिर्द थे। आपने ह्यूमन राइट्स का, इंसानी हुकूक का आलमी चार्टर फराहम किया। ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं, किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं, किसी ताकतवर को कमजोर पर फजीलत नहीं। तुम्हारी जान और माल और इज्जत एक दूसरे पर ऐसे हराम है जैसे आज का दिन यौम आराफा और मैदान आराफात में जैसे यहां पर कोई कत्ल नहीं करता, गाली नहीं देता, ऐसी एक मुसलमान की हुर्मत है। अब मैं आखिरी बात जो आपको बता रहा हूं, बहुत अहम बात, और मुझे उम्मीद है कि इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह तशरीफ लाए तो वुजू कर रहे थे, तो सहाबा इकराम यतमस्सहून बिवुज़ूइही, आपके वुजू के पानी को जमीन पर गिरने नहीं दे रहे थे, हाथ आगे कर रहे थे। कोई चेहरे पर मल रहा है, कोई सीने पर मल रहा है, कोई सर पर मल रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, मा यहमिलुकुम अला हाज़ा, तुम्हें इस पर किसने उभारा, क्यों इतनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे हो? वो कहने लगे, जी आपसे मोहब्बत है। आपने क्या फरमाया? फरमाया जो ये चाहता है, मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूला, कि वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे, और युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलु, और अल्लाह और उसके रसूल इससे मोहब्बत करे, वो 3 काम करे। 3 काम, और तीनों काम रेलेवेंट है। फलयस्दुक हदीसहु इज़ा हद्दस, बात करे तो सच बोले। मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, उसने कहा, जी बात करने का उसूल ये पोलाइट वे में हो, और मोतदिल हो, और रेलेवेंट हो, और विथ रेफरेंसेस हो, और दूसरे की इज्जत नफ्स को मजरू न करे, उसको क्रिटिसाइज न करे। मैंने कहा सारी बातें ठीक है, लेकिन बड़ा उसूल तो आपने बताया ही। बात करने का बड़ा उसूल ये कि बात सच हो। झूठ बात को आप जितना भी मुज़य्यन करके खूबसूरत रैपिंग और कवर करके पेश करेंगे, वो तो मुसलमान का काम नहीं है। तो पहली बात आपने फरमाया, मोहब्बत के लिए पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते हो, अच्छी बात है, लेकिन असल बात फलयस्दुक हदीसहु इज़ा हद्दसा, बात सच करनी है। आज मैं भी नियत कर लूं, आप भी नियत कर ले, जान चली जाएगी पर झूठ नहीं बोलेंगे। इन्न सिद्क़ युंजी वल कज़िब युहलिक, सच निजात देता है और झूठ हलाक कर देता है। और दूसरी बात, वल युअद्दी अमानतहु इज़ा तुमिना, अमानत को मुस्तहिक तक पहुंचाए। कुरान में सूरह निसा में एक आयत है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतों को उनके अहल तक पहुंचाओ। अमानत प्लूरल और जमा का सीगा है। हम तो कहते पैसा लिया पैसा दिया, यही अमानत है, नहीं, माल भी अमानत, ओहदा भी अमानत, वक्त भी अमानत, सेहत भी अमानत, डिग्री भी अमानत। आपको अल्लाह ने जो अथॉरिटी दी है, आप जहां पर सुपीरियर रोल प्ले कर सकते हैं, वो आपके पास अमानत है। उस ओहदे का गलत इस्तेमाल न करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत करीब आएगी, अमानत जाया हो जाएगी। पूछा गया कैफ़ इज़ाअतुहा, कैसे अमानत जाया होगी? आपने फरमाया इज़ा वुस्सिदल अम्रु व फी रिवायतिन इज़ा उसनिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस साआ, जब जिम्मेदारी नाअहल के सुपुर्द हो जाए तो क़यामत का इंतजार करो। वजीर सेहत वो बनता है जो खुद डॉक्टर नहीं होता। वजीर तालीम वो बनता है जिसकी अपनी डिग्री जाली होती है। वजीर मजहबी उमूर वो बनता है जिसकी सूरह इखलास भी ठीक नहीं होती। आप मुझे बताएं, दुनिया में अमन कैसे कायम होगा? इसीलिए दूसरी बात, अमानत को उसके अहल तक पहुंचाए। और तीसरी चीज, वल युहसिन जवार मन जावरहु, अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा कसम उठाई। अल्लाह की कसम, वो मोमिन नहीं। भाई आका को कसम उठाने की जरूरत है? कसम तो वो उठाता है जिसकी बात में डाउट हो। आका की बात सच्ची, पक्की, कतई, हतमी, यकीनी, सॉलिड, वैलिड, उसमें कोई डाउट नहीं।
پھر بھی مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے, ٹو ریئلائز دا ویلیو آف اینی تھنگ, اس بات کو باور کرانے کے لیے آپ نے 3 دفعہ قسم اٹھائی. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ پریشان, یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی پڑوس تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو, جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو. اچھا پڑوسی دیوار کے ساتھ والا بھی پڑوسی ہے, آپ کے ساتھ عدلیہ میں کیس لڑنے والا, آفس میں ساتھ بیٹھنے والا بھی پڑوسی ہے, بائک پہ بائکیہ پہ جس کے ساتھ جا رہے ہو وہ بھی تھوڑی دیر کا پڑوسی ہے, بس میں جس کے ساتھ ٹریولنگ کر رہے ہو وہ بھی پڑوسی ہے, جہاز میں جو آپ کے ساتھ جا رہا ہے وہ بھی پڑوسی ہے. بھائی تھوڑی دیر کا ہو یا زیادہ دیر کا, جس کی رفاقت میسر آ گئی وہ ہو گیا پڑوسی, اور اس کو ہم نے ستانا نہیں ہے, اس کو تکلیف پہنچانی نہیں ہے. تو جب اس طرح کا رول ہم ادا کریں گے, آقا کی سیرت پر عمل کریں گے, گھر میں سکون آئے گا, بہار آئے گی, رحمت آئے گی, اور قرآن سے اپنا تعلق جوڑیے گا. علامہ اقبال کے اشعار پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس نے کہا جب صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے, تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے, تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو, ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے, تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے دری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس خوبصورت محفل کی نظر اسحاق صاحب اور آپ بھائیوں کی نظر آتی ہی رہے گی, تیرے انفاس کی خوشبو گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.